Hello and welcome to We Learn. This is session number 7, Communication Services of Business Study. Topics to be covered are: define communication, state the element of communication processes, explain the importance of communication in business, identify the type of communication, describe the different means of communication, and explain the barriers of communication. So in this session of business study, we will going to had a discussion about the communication, that how we will going to had a communication in a business. एक business के अंदर बहुत ज़्यादा important होता है to have a effective communication. अगर business में effective communication ना हो, so yes, business can't provide properly, can't work properly. And उसको एक dealing करने में, business practices करने में बहुत ज़्यादा problem होती है. So in that case, it is a very essential thing. Communication is one of the most important criteria. Now, in this important factor, the very first important thing arises: what is communication? Communication होती क्या है, कहते क्या है? Communication may be defined as a process. इसे एक process कहा जा सकता है. Process is something जो एक continuity में होता है. So किस चीज का process? That is what sharing of facts, ideas, opinion, थॉट्स, इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, यानी कि बोलते वक्त, लिखते वक्त, जेस्चर के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, जब हम किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन करते हैं या जब हम अपने आइडियाज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, दैट कम्स इनटू अ कम्युनिकेशन. दैट वर्ड्स कम्स इनटू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपकी जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी आइडियाज हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उसे बताना. That is why it's like in Hindi it was stated as like it's a बातचीत kind of. So process of communication always contain a message. आप अगर एक gesture के थ्रू भी एक communication कर रहे हैं तो उसमें भी एक message है, उसमें भी आप अपना एक opinion, idea अपना represent कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को. So that is why without message एक communication possible है ही नहीं. When you communicated, definitely you had a one message. आप एक message के behalf पर ही communicate कर रहे हैं. Now, in that communication, the two main important thing was arises the senders and receivers. Sender और receiver दो ऐसी important चीजें हैं, या we can say that they are the two most important parties जिसके थ्रू पूरा मैसेज जो है वो पास ऑन होता है. So sender is who send the message and receiver is who receive it. Sender वो होते हैं जो मैसेज को भेजते हैं और receiver वो जो रिसीव करते हैं. Now we will, like as we state in the definition, जैसा कि हमने definition में कहा कि communication एक process है. So वो process है तो definitely उसके कुछ stages होंगे, कुछ steps होंगे. So वो process basically occur कैसे होता है? Process के अंदर कुछ elements हैं. Elements in terms of the without those elements, उन चीजों के बगैर एक communication possible ही नहीं है. So in that case, वो elements में जो सबसे पहला element है, that is sender. Sender is the one who sends the message, जो अपने ideas को, अपने concepts को, अपने opinion को दूसरे तक पहुंचाता है. That comes into a sender. That is why sender is always called as a person who send the message. It's a one source. ये एक वो source है जहां से message जो है ultimately flow कर रहा है. दूसरा element होता है receiver. Receiver is a person who received the message. वो इंसान जो मैसेज को अल्टीमेटली रिसीव कर रहा है, जो मैसेज को ले रहा है. सो ही इज द वन हु हैज द अडॉप्शन ऑफ दैट मैसेज, जो उस मैसेज को अडॉप्ट करता है. द थर्ड एलिमेंट इज मैसेज इटसेल्फ. अपने आप में जो मैसेज है वो एक एलिमेंट है. इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन. इट मे कंटेन फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स. ये एक वो सब्जेक्ट मैटर है जिसके अंदर फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग, थॉट्स सब कंटेन होते हैं. वी कैन स्टेट दैट मैसेज एक वो है जहां पर पूरा कंटेंट है, जो आइडिया था, जो ओपिनियन था, उसको फाइनली वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है. दैट वाज कम्स इनटू अ मैसेज. दैट इज व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर. हम इसे सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं कि ये मैटर है उस पूरे सब्जेक्ट का जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो रही है. देन फीडबैक. फीडबैक इज समथिंग जो रिसीवर ने मैसेज लिया, उसका जो वो फीडबैक और जो ओपिनियन और आइडियाज वो जो दे रहे हैं, दैट वाज कम्स इनटू अ feedback. So receiver responses or reactions or reply to the message, which is what basically directed. So अगर हम एक example state करें, so in that example the teacher has
आइडिया अबाउट द कंटेंट, टीचर को के पास कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ ओपिनियंस होते हैं टॉपिक को लेकर। क्लासरूम में टीचर एक सेंडर का रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि वो कंटेंट से रिलेटेड अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को जो रिसीवर हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स अपना एक रिसीवर का रोल प्ले करते हैं जब उन्हें किसी तरीके की इश्यूज या वी कैन से दैट उनकी जो क्वेरीज होती हैं, उन्हें चीजें समझ नहीं आती है, या दे हैड अदर देयर ओपिनियंस, उनकी अपनी कुछ ओपिनियंस होती है, तो जब वो उसे एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक फीडबैक हो जाता है जो रिसीवर के थ्रू आता है। सो दैट एग्जाम्पल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये एलिमेंट किस तरह से काम करते हैं। तो ये चारों ही एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेंडर्स गेट्स द आइडिया, सेंडर को एक आइडिया मिल जाता है कि रिसीवर को एक जो कॉन्सेप्ट था, जो सब्जेक्ट मैटर उसको दिया गया, वो कितना समझ में आया। तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर दी सेंडर। सेंडर के लिए फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कम्युनिकेशंस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम कम्युनिकेशंस के इंपॉर्टेंस की बात करें तो वेरी फर्स्ट इज इट्स एक्सप्रेस द फैक्ट्स, फिगर्स एंड आइडियाज। डेफिनेटली जो अभी हम इनिशियल फर्स्ट स्लाइड से डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक ओपिनियन, फैक्ट्स, आइडियाज को एक्सप्लेन करता है। सेकेंड is used within the firm as the means of controlling its operation. ये यूज होता है एक फर्म के अंदर अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस पर एक कंट्रोल जनरेट करने के लिए। इट प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल लिंक्स बिटवीन द फर्म, इट्स सप्लायर्स एंड कस्टमर। सप्लायर एंड कस्टमर के बीच में एक असेंशियल और इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट करते हैं। ये एजुकेट करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। We try to overcome the barriers of language. Language barriers एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर हो जाता है जो हमारे कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो इन दैट केस इससे ओवरकम करने की बहुत कोशिश की जाती है कम्युनिकेशन में। People are able to take the advantage of achievement made by others. किस तरह की जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी एडवांटेजेस हैं, वो एक्सप्लेन हो सकते हैं प्रॉपरली। सो दैट्स कम्स इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती हैं? अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला है ओरल एंड अनदर इज रिटन। दो ही तरह से कम्युनिकेशन हो सकती है, ओरल और वर्बल। सो अगर ओरल की बात करें हम तो ओरल समथिंग और वर्बल इज समथिंग जो बोलकर की जाती। व्हेन आई एम स्पीकिंग, सो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। When I prepared a slide and put the content on it, that is what the written thing. तो written communication हो जाता है। So written is something जो एक message होता है जो words में लिखा जाता है, और we can say that there's something which is written in symbol, sign, जो किसी भी symbol और sign में लिखा जाता है। That's all comes into the written communication. It could be like in business practices, किसी भी तरीके का letter, मेमोज, सर्कुलर, नोटिस, रिपोर्ट्स, मैनुअल, मैगजीन, हैंडबुक्स, ये सब जो प्रिपेयर होता है ये रिटन कम्युनिकेशन में आता है। नाउ द रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। रिटन कम्युनिकेशन एक विजुअल भी होती है और जेस्चुरल भी होती है। विजुअल इज रिलेटेड टू द विजुअलाइजेशन। जैसे इफ यू सी द पिक्चर, द लास्ट ट्री गॉन, सो दैट इमेज, एक ट्री है और ट्री कटा हुआ ट्री है और उसके ऊपर लिखा हुआ है द लास्ट ट्री गॉन। सो ये मैसेज जो है, ये विजुअल जो है, वो आपको कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कुछ दिखा रहा है आपको। सो दैट्स कम्स इनटू द रिटन और वी कैन से दैट द विजुअल कम्युनिकेशन। सो इन दैट केस ट्रैफिक पुलिसमैन शोइंग द स्टॉप साइन, सो टीचर शोइंग द चार्ट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ये सब विजुअल कम्युनिकेशन होती हैं। Then another is the gestural or the oral communication. It is like किसी भी तरह की communication जो whistle के थ्रू, horn के थ्रू, buzzers के थ्रू की जाती है, that's all comes into the oral communication. It is like, for example, the ambulance have their light and police have their light of ambulance के ऊपर जो siren होता है, जो light होती है, वो emergency sign करता है, वो communicate कर रहा है आपको कुछ. So that's all comes into the oral communication. Now, we defined it कि बिजनेस के अंदर जो मीन्स और उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. वी गेट द आइडिया अबाउट लेटर है, मोमोज, एंड दैट्स ऑल कम्स इनटू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर्स में सबसे पहला होता है द लेटर्स आर रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एक रिटन फॉर्म होता है. किसी भी तरीके की अगर आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो यू कैन राइट अ लेटर टू द
in the context of the one thing, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका कंटेंट बनेगा और आप किसी एक को स्टेट करते हुए वो लेटर डिफाइन करोगे. सो दैट्स कम इनटू द लेटर. लेटर एक सब्जेक्ट मैटर, अगेन देयर वाज अ वन सब्जेक्ट मैटर फॉर अ लेटर. उसमें कोई इश्यू, कोई कंसर्न, कोई एप्लीकेशन, इस तरह की चीजें आप लेटर के अंदर फॉर्म्ड आउट करते हो. टेलीग्राम इज अगेन अ वन फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ये भी एक तरीके की रिटन कम्युनिकेशन होती है. इसका मेजर पार्ट होता है कि बहुत ब्रीफ होती है. इट इज बेसिकली मेंट फॉर द अर्जेंस बेसिस. दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल मैसेज और वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो पास ऑन करना होता है, तो दैट कम्स विद द टेलीग्राम. देन अदर इज टेलीफोन. Telephones is widely used for the internal and external business communication. That is like internal business के अंदर intercoms चीजें यूज हो जाती हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, पास करने के लिए. So that comes into the telephones. Telephone is one of a mean जो कि verbal mean के अंदर आता है. जब हम लोग orally किसी से बात करते हैं तो वो telephonic conversation से करते हैं. Another is telex. Telex is प्रिंटेड कम्युनिकेशन जो कि टेली प्रिंटर की तरह यूज होता है. यू कनेक्ट योर प्रिंटर विद द टेली पार्ट, सो दैट्स कम इनटू टेली प्रिंटर. देन द फैक्स. फैक्स इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. किसी भी तरीके का हैंड रिटन मैटर हो, किसी भी तरीके की जो लेटर्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, स्केचेस हो सकते हैं, वो सब उनकी स्कैन कॉपीज आप अवेलेबल अरेंज कर सकते हो. yes, at the same time you can make it more available. आप उसे अवेलेबल भी करवा देते हैं. So that's come into the faxes. So fax is an electronic device that enable the instant transmission of any matter, which may be handwritten or printed. Email. Email is now the very popular mean nowadays. Everybody use internet and इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ईमेल को. E is always stands for electronic. So it is electronic mail. जब हम किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करते हैं with the help of mail, वो हमारी इंटरनेट के थ्रू जाती है. That both the parties have computers, both the parties have internet facilities और एक respective एरिया में उनकी मेल आईडी बनती है और एक एड्रेस जनरेट होता है जिस एड्रेस पर वो अपने मैसेज को कन्वे करते हैं. सो दैट्स ऑल कम्स इनटू ईमेल. देन अनदर कम्युनिकेशन मैसेज इज वॉइस मेल. वॉइस मेल इज बेसिकली व्हाट, जब आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अवेलेबल करवाते हो. सेम विद द ईमेल. ईमेल एक रिटन कम्युनिकेशन होती है जो इंटरनेट के थ्रू पास ऑन होती है. वॉइस मेल एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो कि इंटरनेट के थ्रू पास ऑन होती है. दैट इज वाई हम इसे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बोलते हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है फॉर रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इनकमिंग टेलीफोनिक कॉल्स. जितनी भी टेलीफोनिक कॉल्स आती हैं, जितनी भी टेलीफोनिक रिसीविंग्स होती हैं, उनको रिसीव करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए हम वॉइस मेल का यूज करते हैं. Then another is teleconferencing. Teleconferencing is with the help of again टेक्नोलॉजी की मदद से, इंटरनेट की मदद से जब हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं with a group of people communicate with each other, that was comes into a conference. जब बहुत सारे लोग आपस में बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं, so वो कॉन्फ्रेंस है. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में कॉन्फ्रेंसेस जनरली रेफर्स टू मीटिंग ऑफ पीपल फ्रॉम कंसल्टिंग और डिस्कशन रिगार्डिंग एनी कॉमन इशू. सो किसी भी एक कॉमन इशू पर जब जो लोग हैं वो कंसल्ट कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, वो एक इश्यूज को डिस्कस करते हुए उसके सोल्यूशन पे आ रहे हैं. सो दैट्स कम्स इनटू द टेली कॉन्फ्रेंसिंग्स. देन अदर इज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. टेली कॉन्फ्रेंसिंग में एज यू सी इन द पिक्चर, ये टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसेस की पिक्चर है जिसके अंदर इट्स वो स्टेटिंग दैट द पर्सन इज ऑन, वी कैन इजीली विजुअलाइज द पर्सन. हम जो भी एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में मेन पर्सन उसे देख सकते हैं, वो क्या कहना चाहता है, उनकी बात दोनों ही वे से हमें समझ में आ रही है, इन ओरल फॉर्म एंड इन जेस्चर फॉर्म. बट इन ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इट्स ओनली एन ऑडियो. किसी भी तरह का एक स्पेसिफिक मीन नहीं होता है, ये ऑडियो कम्युनिकेशंस में आते हैं. दैट इज टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन सिस्टम in which the participant listen to the voice
जितने भी कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि अगेन कॉन्फ्रेंस क्या है, ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन है, सो वहां पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक की वॉइस को सुनते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड इमीडिएटली सिटिंग एट अ डिफरेंट प्लेसेस, वो डिफरेंट प्लेसेस पे बैठते हैं और उस पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं. सो दैट वाज कम्स इनटू द ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इन दैट केस पीपल मे लिसन टू वॉइस थ्रू रेडियो, टेलीविजन और पुट देयर क्वेरीज बाय यूजिंग टेलीफोन्स आल्सो. सो जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो टेलीफोनिक के थ्रू भी हो सकती है. दैट कुड हैपन विद द रेडियोज एंड टेलीविजन्स. Now, what are the different means of communication? Again, means of communication में एक होता है video conferencing. In that case, the participants of the conferences can also see the picture of each other. वो एक दूसरे की picture देख सकते हैं. That conferences could be one way or two way. So in that case, दो तरह से हमारी video conferencing हो सकती है. The very first is the one way video and another is two way audio. यानी कि एक तरफ से एक ही पार्टी पर्सन को देख पा रही है और दूसरी पार्टी पर्सन को नहीं देख पा रही है. That is one way video. Another is two way audio. Two way audio, that is सुन दोनों ही पार्टी रहे हैं. That means the audio is very much clear, but one party is able to see another. और जो दूसरा मेन होता है वो होता है दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को सुन भी पा रही हैं और देख भी पा रही हैं. सो दैट्स कम इनटू बोथ वे ऑडियोज एंड वीडियो. सो दैट इज द टू डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसेसेस. नाउ we had a detailed discussion on one way video and two way audio. So इसे जब हमने समझा था ये वो था that is what कि on one side it's a video but on the other side it's only audio. तो एक तरफ से जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ऑडियो और वीडियो दोनों के थ्रू हो रही है, जैसे हमने पिक्चर में देखा था लास्ट स्लाइड्स में, लास्ट टू लास्ट स्लाइड्स के अंदर, और एक साइड से सिर्फ ऑडियो अवेलेबल है. तो दैट कम्स इनटू द पार्टिसिपेंट्स कैन लिसन टू द वॉइस and see the picture of a person sitting in the studio. Another is both way audio and video. Where the participant at both the end, studio as well as audience ends, are able to listen the voice and see the picture of each other while talking among themselves. So एक दूसरे से बात करते वक्त वो एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं और एक दूसरे को सुन भी पा रहे हैं. So that comes into the ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये तो एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, बट ये एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में अगेन जो दो पार्टीज होती हैं वो एक जगह पर एक साथ आकर बात करती हैं. यहाँ पर दोनों पार्टीज अलग अलग प्लेस पे बैठी हैं, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो बात कर पा रहे हैं, वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं. सो दैट इज व्हाई इट्स अ वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स. देन अनदर इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स हैं? अगर हम बैरियर्स की बात करें तो सबसे पहला बैरियर राइज होता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. यानी कि जब, बिकॉज मैसेज इज द मेन पार्ट, अगर हमारा जो सेंडर है वो मैसेज को सही से फिगर आउट नहीं करेगा, सो ऑटोमेटिकली प्रॉपर मैसेज आगे रिसीवर तक पहुंचेगा नहीं. So that was come into badly expressed message. So there will lack of vocabulary, lack of formation. So that may lead to bad communication. Another is screening and filtering. Now in message there were so many things. Message के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो initial level पे बतानी चाहिए, and बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं इग्नोर करनी चाहिए, या उनकी consideration बहुत बाद में ली जाती है. In that case, that process is called as filtering. क्या कहना है, कितना कहना है, किस तरह से कहना है, ये सब फिल्टरिंग प्रोसेस होता है एक कम्युनिकेशन के अंदर. सो इन दैट केस इफ सेंडर इज अनएबल टू फिल्टर इट और टू स्क्रीन इट प्रॉपरली, अगर वो उसको सही से फिल्टर नहीं करता है, सही से स्क्रीन आउट नहीं करता है, तो उस केस में दैट मे क्रिएट एन इशू फॉर द सेंडर, क्योंकि रिसीवर को उस केस में बात समझ नहीं आएगी और हो सकता है इम्पैक्ट कुछ गलत पड़े. So at each level, the messages should be screened properly and yes, at the same time filtered according to the favorable impression. Favorable impression मतलब कि जो रिसीवर है जिस तरह से वो बात को कंसीडर करना चाहता है, या जो रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग है, उसी हिसाब से वो मैसेज को पास ऑन किया जाएगा. Then another is complex organization structure. यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है, तो ऑटोमेटिकली मैसेजेस फिल्टर्ड होके या 30% मैसेज ही सपोज पहुंचता है लोअर लेवल तक. तो दैट ऑल लीड्स टू दी स्ट्रक्चर कि किस तरह से आपने कम्युनिकेशन का फ्लो दिया है.
कितने लोग हैं इस कम्युनिकेशन के अंदर, कैसे उसको पास कर रहे हैं, हर पीपल अपनी आइडियोलॉजीज उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट कर देता है. Inattention is the part from the we can say that the receiver side. जब receiver एक मैसेज को लेकर attentive नहीं होते हैं, वो inattentive होते हैं, so that may lead कि उनका ध्यान नहीं था, ध्यान से सुना नहीं, ignore, that all comes into inattentions. इसके थ्रू भी अगेन ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे कम्युनिकेशन को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो इनअटेंशन. Another is unclarified assumptions. Unclarified assumptions is कि बहुत सारी ऐसी assumptions हैं जो कि हमारा रिसीवर परफॉर्म करता है. सो अगर हमारे रिसीवर ने पहले ही बहुत सारी assumptions ले ली, so automatically that's all comes into the unclarified assumptions. ये सारी unclarified assumptions में आए क्योंकि उसने वो सारी assumptions perceive कर ली. So that comes into this one. Then other is resistance to change. Resistance to change is what when the receiver is not ready to accept that change. जब हमारा receiver किसी तरीके के change को accept नहीं करना चाहता है, that comes into the resistance to change. That is, everybody likes to receive that information which confirm his present belief and trying to ignore anything that is contrary to each such beliefs. Then म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट. म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट इज कि जो सेंडर है उसे रिसीवर पर ट्रस्ट नहीं है और जो रिसीवर है उसे सेंडर पर ट्रस्ट नहीं है. सो दैट ऑल कम्स इनटू म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पॉसिबल व्हेन देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट जो है कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को कंसीडर नहीं करना चाहती और दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को सुनना नहीं चाहती. Then other is status and position. Status matter, like for example, the superior is sending some message to the subordinate. So the attitude of sender and receiver is different. अगर सबऑर्डिनेट सुपीरियर को किसी तरीके का मैसेज दे रहा है तो ऑल टुगेदर कम्युनिकेशन का जो एनवायरनमेंट है, जो मैसेज है, वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं. सो इन दैट केस सबऑर्डिनेट मे नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट्स फुली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ द कॉन्शियसनेस. Complex organization structure is again the organization structure is altogether complex. Staff speciality, long chain of command, these all comes into the complex organization. Now, there are certain questions which you have to do it by yourself. The very first is define communication. आपको communication क्या होती है ये बताना है. Second, name the elements of the communication process. Communication के कितने elements होते हैं, जो 4 elements हमने discuss किए आपको वो बताना है. Then what is the means of business communication? Business communication क्या होता है? Letter are the best mean of communication. आपको ये state करना है कि letter कैसे एक best mean of communication है. And give the short description on the voicemail in about the 2 sentences. So this is all about this session. So we are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.